Hello students, we are reading lesson 9. Up you go. So let's start from these questions. Why do you think a drain was dug around the tent? Why? So the drain was dug to keep off insect, scorpion, snakes. ओके ड्रेन गड्ढा इसलिए खोद दिया जाता है ताकि वहां पर कोई कीड़े ना आ सके, है ना? Besides mountaineering, what are other activities that can be called adventurous and why? So some of the adventurous activities are river rafting, scuba diving and hang gliding. Hang gliding means क्या होता है? वो जो ऊपर हवा में वो रोप वे टाइप का नहीं रहता है, या तो फिर रोप वे नहीं कहा जा सकता. हैंग ग्लाइडिंग मतलब वो जो हॉट एयर बलून्स रहते हैं और उसमें उड़ना, ठीक है? या हॉट एयर बलून के अलावा भी एक ऐसा होता है कि जिसमें आप बड़े से कपड़े में, मतलब टीवी में देखा होगा आपने, बलून टाइप ऊपर उड़ता रहता है और आप नीचे लटके रहते हैं, है ना? वो कहलाता है हैंग ग्लाइडिंग. सो सी आंसर्स एंड राइट इन योर फेयर कॉपी. ओके, पेज नंबर 84, बोथ आंसर्स. ओके, नाउ imagine and write. You are on a mountain. How do you feel there? What can you see? What do you feel like doing there? So I feel excited. See, I feel excited. I can see vast blue sky. Vast मतलब बहुत विशाल, ठीक है? Blue sky around me. I feel like I am the top of the world. Okay, now alone on the mountain top. A 12-year-old girl living in the mountains was out on a school picnic. She climbed a mountain peak of 4,000 meters with her friends. The girls had done this for fun and adventure. Soon it was dark and they could not come down. It was also cold and scary. They were alone without any food and it was a long night. This happened to Bachendri Pal, played when she was a young girl. ये बचेंद्री पाल के साथ हुआ था कि जब वो क्या थी, एक यंग गर्ल थी, ठीक है? सो बचेंद्री ग्रू अप इन नाकुरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड. When she grew older, she joined Nehru Institute of Mountaineering, Uttarakanshi. Her guide was Brigadier Gyan Singh. Bachendri did very well in her training. She started to train women in mountaineering courses. In 1984, Bachendri was selected as a team member to climb the Mount Everest. और ये भी 1984 की ही बात चल रही थी, है ना? Snowstorm. There were 7 women in that 18 members team. On the night of 15th May, the team was very tired after having reached a height of 7,300 meters. The team put up their tents and went to sleep. Around midnight, they heard a loud sound and then a bang. Before they were fully awake, the tent flew off and something very heavy hit them. There was a terrible snowstorm. Bachendri was almost buried under the snow and was hurt on the head. Many of the team members were also injured. The others used snow picks and axes to dig out those who had been buried under the snow. The rest of the team members returned to base camp, but Bachendri went ahead, climbing slowly but steadily towards the peak. It was 7 minutes past on o'clock in the afternoon of 23rd May when Bachendri Pal stepped onto the peak of 8,900 meters high Mount Everest, also called Sagarmatha in Nepal. There was another team member with her. There was no space for 2 people to stand on the top at the same time. On one slip and they would fall straight down thousands of feet below. Bachendri and her teammate dug into the snow and pitched their axe firmly in the ice. Using this as a hook, they tied themselves to it with a rope. Only then 2 of them could stand here. She was shivering with cold but filled with the warmth of achievement. She bowed her head
pitched the national flag and took photographs. She spent 43 minutes on the highest peak in the world. Bachendri Pal became the first Indian woman and the 5th woman in the world to reach the peak of Mount Everest. तो यहाँ पर बचेंद्री पाल की स्टोरी बताई जा रही है. बचेंद्री पाल कौन है? जो फर्स्ट इंडियन वुमन है माउंट एवरेस्ट की पीक, मतलब माउंट एवरेस्ट क्लिम्ब करने वाली फर्स्ट लेडी. ठीक है, फर्स्ट वुमन. और अगर पूरे वर्ल्ड में कहा जाए, हमारे इंडिया में ये फर्स्ट इंडियन वुमन है, और पूरे वर्ल्ड में कहा जाए तो 5th वुमन है. ठीक है, तो यहाँ स्टोरी बताई जा रही है कि एक 12 ईयर ओल्ड गर्ल, 12 साल की जो लड़की थी, वो स्कूल पिकनिक में, है ना, कहाँ गई थी? जो कि एक 12 ईयर्स ओल्ड गर्ल, 12 साल की लड़की जो कि माउंटेन में रहती थी, है ना, वो स्कूल पिकनिक में कहीं बाहर गई. ठीक है, तो उसने 4000 मीटर अपने फ्रेंड्स के साथ माउंटेन क्लिम्ब किया. ठीक है, अब ये जो गर्ल्स थी वो तो फन में, है ना, या एडवेंचर कहा जा सकता है, उसके चलते उन्होंने 4000 मीटर माउंटेन क्लिम्ब किया. पर क्या हुआ, 4000 मीटर क्लिम्ब करने के बाद शाम हो चुकी थी और वो वापस नीचे नहीं आ पाए थे. अब वो वहां बहुत ठंडी भी थी और उन्हें डर भी लग रहा था. ठीक है, और उनके पास कुछ खाने को भी नहीं था और पूरी रात लंबी पड़ी हुई थी. तो ये जो वाक्या हुआ था ये बचेंद्री पाल के साथ हुआ था. ठीक है, जब वो एक यंग गर्ल थी. अब जैसे बचेंद्री बड़ी हुई, ठीक है, तो वो कहाँ बड़ी हुई? नकुरी विलेज में, जो कि गढ़वाल एरिया में है उत्तराखंड के, है ना. जब वो बड़ी हुई तो उनने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ज्वाइन किया. माउंटेनियरिंग वाला जो इंस्टीट्यूट है उसको उनने ज्वाइन किया, जो कि उत्तराकाशी में है. और उनके गाइड कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. ठीक है, तो ट्रेनिंग के टाइम तो ये बहुत अच्छी थी, है ना. तो अच्छी होने के बाद फिर इसने क्या किया? बचेंद्री पाल ने वुमेन्स को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया माउंटेनियरिंग की. ठीक है, अब 1984 में बचेंद्री जो थी सिलेक्ट की गई माउंट एवरेस्ट क्लिम्ब करने के लिए. ठीक है, अब यहाँ स्नो स्टॉर्म के बारे में बताया जा रहा है. स्नो स्टॉर्म मतलब होता है कि बर्फ का तूफान कहा जा सकता है एक प्रकार से, है ना. तो 18 मेंबर्स थे टीम में. ठीक है, 18 मेंबर्स की टीम में 7 वुमेन्स थी. ओके, और ये बात है कब की? 15 मई की रात की बात है. जो पूरी टीम थी वो थकी हुई थी और कितनी हाइट पे थी वो? 7300 मीटर की हाइट पर थी. माउंट एवरेस्ट में 7300 की हाइट पे थी. तो रात का टाइम था, सारे लोग थके हुए थे. तो उन लोगों ने क्या किया? अपने अपने टेंट में जाकर सो गए. ठीक है, अब आधी रात में क्या होता है कि एक बहुत तेज लाउड साउंड उनको सुनाई देता है. ठीक है, लाउड साउंड सुनाई देता है तो एकदम से सारे लोग उठ जाते हैं और देखते हैं तो उनका पूरा जो टेंट था वो उड़ चुका था, है ना. और बहुत कुछ हैवी चीज उनके टेंट में आकर गिरी थी, जिसकी वजह से टेंट उड़ भी चुके थे. ठीक है, अब क्या था वो बहुत एक डरावना स्नो स्टॉर्म था, है ना. बचेंद्री जो थी, मतलब ये कि भारी भारी जो बर्फ, एक प्रकार से कहा जाए, बर्फ आकर नीचे गिरी. ठीक है, और टेंट जो था वो उड़ चुका था हवा की वजह से, है ना, और बर्फ आकर गिरी. तो जो बचेंद्री थी, बरीड मीन्स होता है दफन हो जाना. ठीक है, तो बचेंद्री जो थी स्नो के अंदर, बर्फ के अंदर दफन हो गई थी, मतलब उसके ऊपर से पूरी बर्फ आ चुकी थी, है ना. और उसके सिर पे भी चोट लगी हुई थी और उसके और भी जो टीम मेंबर्स थे वो भी सब घायल थे. ठीक है, तो बाकी जो कुछ लोग थे अपनी एक्सेस का यूज करके, ठीक है, एक्स मीन्स क्या होता है? एक्स का मीन्स तो कुल्हाड़ी भी होता है. ठीक है, तो उसका यूज करके वो क्या कर रहे थे? लोगों को, जो लोग बर्फ के अंदर दफन हो चुके थे उनको निकाल रहे थे. ठीक है, तो बहुत सारे जो टीम मेंबर्स थे वो वापस
अपने बेस कैंप पर आ चुके थे, लेकिन जो बचेंद्री थी वो आगे बढ़ती गई। ठीक है, धीरे धीरे क्लिम्ब करती गई ऊपर, है ना, चोटी की तरफ। पीक मीन्स होता है चोटी। ठीक है, तो ये जो वाक्य है फिर 23 मई का है, दोपहर का, जब बचेंद्री पाल जो थी 8900 मीटर, है ना, ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई की चोटी पर वो पहुंच चुकी थी माउंट एवरेस्ट में। ठीक है, जिसे और क्या कहा जाता है, सागर माथा भी कहा जाता है नेपाल में, है ना। उसके साथ कुछ और टीम मेंबर भी थे, पर वहां पर चोटी में खड़े होने के लिए 2 पीपल से ज्यादा खड़े होने के लिए जगह नहीं थी। नो स्पेस फॉर 2 पीपल्स टू स्टैंड ऑन द टॉप एट द सेम टाइम। एक समय में 2 लोगों से ज्यादा वहां कोई खड़ा नहीं हो सकता था, और अगर किसी का पैर स्लिप करता तो वो हजारों फीट नीचे जाकर गिरता। ठीक है, तो बचेंद्री और उसके जो टीममेट थे वो धीरे धीरे स्नो पर डग करते हुए, मतलब खोद खोद कर, मतलब इस तरीके से आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, तो और किसका यूज कर रहे थे, हुक का यूज भी कर रहे थे वो बढ़ने के लिए, है ना। और सब लोग जो थे एक दूसरे को रोप से टाइडली बांधे हुए थे। ठीक है, रस्सियों से सारे लोग एक साथ बंधे हुए थे, और टीम से सिर्फ 2 लोग जो थे हाईएस्ट पीक पर खड़े हो सकते थे। अब वो सब कांप भी रहे थे ठंड की वजह से, है ना, लेकिन अचीवमेंट की गर्माहट उनके अंदर थी। उनने अपना सर झुकाया और अपना नेशनल फ्लैग जो था उस हाईएस्ट पीक पर लगाया, और वहां खड़े होकर फिर क्या की, फोटोग्राफ्स खींची। ठीक है, वहां पर उनने 43 मिनट्स स्पेंड किए उस हाईएस्ट पीक पर, वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक पर। ठीक है, तो बचेंद्री पाल जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी और 5th वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। ओके।